we are talking about the younger ones, adults, and senior citizens, can be collected if it is there in that particular class. And then, if I go ahead with such sort of question, how many visitors were there in the pre-COVID area? And how many visitors they were there post-COVID area? Can they collect the data? Handling in any form the same can be done. Can I go ahead, like check out about the currency during that period? उसका collection बनाए आज जैसे भी है, can they go ahead with that? Is it feasible? पढ़ तो हमें नहीं है. जहाँ पर जो उन्होंने 5 monuments whatever they have selected, they have to talk about the geographical location. What is the climate and weather of that particular location? Soil का condition कैसा था जहाँ पर वो monument बनाया गया? Water resources and drainage का facilities, access and control in the landscape of that. Can they do it? Again, it is. Can we ask? It is being said that Mughals they were never anemic. क्यों? उनकी डाइट में ऐसा क्या? You can ask them. This is the kind of question to ponder over higher order thinking skills. See, they can write about the nutrient values, spices and the condiments. Immune system उनका कैसा था? Ions are a very rich source of calcium and magnesium. It's not only about starch, right? So they are all exploring about Mughals, monuments and all. And what are integrated? Music. क्या क्या? Right? They'll be talking about instruments, Hindustani music, the ghazal, rabab. Tansen was playing rabab, and they talk about the kettle drum and all. So now, one topic we have taken, and we have integrated all the subjects. So this is what you have to do. Will it be feasible to integrate when you are sitting in your own classes and you are not discussing anything while sitting in the... See how wonderfully you are completing and you are integrating all the chapters and the concepts. We always rush towards completing chapters. क्या ये होना चाहिए कि नहीं? अब आप बताओ. Definitely होना चाहिए. This calls for planning. Yes. When we are planning our lesson times and all, that time it may require. This is what I spoke in morning, that at the initial set of your new session, you have to brainstorm, you have to do planning, and they sit all together. But start in the month of say Feb, so that when the new session would going to begin in the month of April, you are handy with your plans and do it steadily. It's not required that you have to do it every month. Project is if you see CD And conduct. Till class 8th, you have to do one subject integrated project that should be based on Ek Bharat Shresth Bharat. So whatever is your paired state, think about the project and give the instructions to your students accordingly so that they can research. It's not like that every teacher is giving, because I have been noticing like teachers when they don't have a clarity, they burden the students with lot of work. Because when we don't plan, तो बच्चों के पास एक ही जगह 8 प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट जितने भी है, वेल एजुकेशन का भी है, जीके का भी है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू मैनेज विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. लेट गो हेड विद ये सब उनको बोलेंगे दे हैव टू प्रेजेंट इन अ वन ब्रोशर बना के लेकर, राइट? सो इट इज लाइक दैट. आप इसको नाम दे सकते हो दिल्ली थ्रू मुगल लेंस, कि दिल्ली के ही आपको मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, राइट? मे बी आवर कंट्री थ्रू द मुगल लेंस आप पूरी कंट्री को कवर कर रहे हो. मे बी आप 2 स्टेट्स को करना चाहते हो. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू कवर, बट मेक श्योर यू प्लान इट प्रॉपर्ली, राइट? एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रोजेक्ट जरूर होगा, राइट? टिल 8th स्टैंडर्ड एक ही है, तो वो मतलब एक ही कौन सा होना चाहिए? एक भारत श्रेष्ठ भारत. एंड 9th and 10th एटलीस्ट वन शुड बी रिलेटेड टू द समटाइम क्वेश्चंस की प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे होगा प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट थीम एक, उसी में से डेटा निकालकर अलग तरीके से इंटरप्रेट करना. I'll make your task easier for Ek Bharat Shresth Bharat, though it's there in the presentation. Since the paucity of time is there, you go and search Ek Bharat Shresth Bharat. There is a proper calendar released by the ministry. Okay, so month wise, activity wise, exemplar is there. You plan your Ek Bharat Shresth Bharat activities on the basis of that. Again, planning is required. Wherein when the project is there, the state is
may going to be differ. Every year they are changing, and this time they have changed after 3 years, if I'm not mistaken. First time they have started Right. for 3 years, and after 3 years They have now changed. changed. But other than that, you have the design very much ready. And more adding to that, the state tourism sites. If you will go there, your Ek Bharat Shresh Bharat project is sorted. They have everything there. What ma'am is talking about, ma'am's project is a higher order thinking, but you need some base for that. उसको छोड़कर कोई नई चीज शुरू करेंगे तो सिलेबस कौन कवर करवाए, राइट? तो देयर आर सैंपल्स गिवन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे मिलेंगे, बट बी वाइज इनफ टू चूज एज पर योर टॉपिक्स. यूजुअली 8th स्टैंडर्ड तक हमारे स्कूल्स में, क्लासेस में, हम जो बच्चे को साइंसेस वगैरह की कुछ और बुक्स होती हैं, दे आर यूजुअली ऑफ द प्राइवेट पब्लिशर्स, राइट? तो जरूरी नहीं कि उसमें वही चैप्टर हो जो वहां पर एनसीईआरटी की बुक्स में लिखे हुए. प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो, यू नीड टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, एंड देन यू हैव टू सी कि कैसा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट सिर्फ आपको करना है, राइट? और उस चीज के लिए इट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन ईदर द टीचर फॉर द असेसमेंट और द स्टूडेंट टू कंप्लीट और द पेरेंट. maybe monetary point of view if we talk about, it should be very easy to done, right? Make sure classroom में ही बहुत सारी activities हो जाएं, otherwise some of the portion they can complete the same at home when you facilitate them. Like this weekend आप इस चीज को research करके लाएं, in bits and pieces they will be completing. तभी वो पूरे साल में भी करते करते जाएंगे. Performing art है, culinary है, literary है, graphic है, stick to that also. You can have amalgamation of more than one art forms also, but obviously highlighting one. And then resources local हो, specific हो, environmental. आप learning outcome में कोई भी effect नहीं पड़ रहा है, that art form is useless in that case. अगर बच्चे की learning बेहतर हो रही है उस art form को use करने के साथ, अगर मैं बच्चे को angles पढ़ा रही हूँ, बच्चे को कई बार नहीं समझ में आ रहा, I have involved the child in yoga dance, कुछ अलग अलग पोस्टर बनवा लिए, या मैंने अभी आपको जो दिखाया था स्पाइडर वेब है, या मैंने कुछ और बताया, तो चाइल्ड इज एबल टू सी कि डेली लाइफ में यहाँ पर देख के पता चल रहा है एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल है, 45 का होगा, ये 70 डिग्री का एंगल लग रहा है. अगर आपको लगता है कि उससे बच्चे की लर्निंग बेहतर हो रही है, लर्निंग आउटकम अचीव हो रही है, यूज दैट आर्ट फॉर्म. अगर आपको लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फायदा नहीं है उस आर्ट फॉर्म को, दैट इज कॉल्ड टाइम वेस्टर. बच्चे का अपना, आर्ट टीचर का, स्कूल का, सबका, राइट? No need. And then if I talk about planning, I have already told you, either go ahead with the short icebreakers or maybe the long activities as per the need, as per the age group, as per your lesson, as per your progression. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. कोई explain करेगा? Anybody? Learning, it means after the learning there's assessment. Whatever we have learned, so there's assessment like formative, summative assessment. These are assessment of learning, if I'm not wrong, ma'am. Assessment of learning means after the learning there's an assessment. Whatever we have taught the students, like formative assessment, summative assessment, these are assessment of learning. Assessment of learning. Ma'am is saying whether it is formative assessment, whether it is summative assessment जो हम बाद में लेते हैं, that is called assessment of learning. हाँ जी, assessment for learning क्या होती है? Yes ma'am. Assessment for learning. Assessment for learning includes many things which requires a lot of knowledge, lot of activities, which requires a lot of participation of the students, where we are learning and we are making other also learn at the same time. Can I tell you just one example? You might have heard it number of times on the online platforms. मैं आपको दो अलग-अलग examples देके बताऊंगी. सबसे पहले example अगर मैं आपको बताऊं कि अगर suppose मैंने घर में कुछ खाना बनाया, I have cooked something, खाना बनाकर मैंने directly वो अपने जो guest हैं उनको serve कर दिया. मैंने check नहीं किया उसको whether the food is ready or not. इसमें स्पाइसेस, इसमें कॉन्डिमेंट्स, इसमें थिकनेस, इसमें ग्रेवी प्रॉपर है या नहीं है, मुझे नहीं पता. मैंने वो गेस्ट को दे दिया बनाकर, मेरा मूड ऐसा था, मैंने बना के दे दिया. अब वो खाने वाला बताएगा सही है नहीं सही है, और उसके बाद मैं उसको ठीक कर सकती हूँ क्या? नहीं. दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग.
जब हम बच्चों के ईयर एंड पर, हाफ ईयरली पर जब हम उनके टेस्ट लेते हैं, जब उन्हें नंबर दे देते हैं, ये रे तुम्हारे भी इतने नंबर, ये नंबर की जगह ग्रेड भी दे दो, एक ही बात है, ठीक है। हम मार्क्स नहीं देते, हम ABC देते हैं, तो वो भी तो बच्चों को बता ही दिया ना, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, राइट। कान को ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे ही पढ़ना, बता तो दिया उनको कि तुम A कैटेगरी, तुम B या C ये कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। उसके बाद बच्चे के पास गुंजाइश है प्रूव करने की? नो, दैट इज असेसमेंट। अगर मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद अपने स्पाउस को, अपनी मदर इन लॉ को, जो भी है उनको बोला जरा एक बार प्लीज इसको चख कर देख लो कि इसमें कोई नमक मिर्ची कम ज्यादा तो ऐसा तो नहीं है। तो मुझे जो फीडबैक दिया जाता है और उस फीडबैक के बाद जो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करती हूँ कि थोड़ा नमक कम है और डाल दिया, ठीक है, थोड़ा कुछ भी है तीखा कर दिया है, कुछ भी कर दिया, जो भी फीडबैक मिला मैंने उसको अच्छा करके वो दे दिया। मेरे पास वो जो मदर इन लॉ ने चेक करा, मेरे स्पाउस ने जो चेक करा, उसके बाद मुझे फीडबैक मिला एंड आई हैव इंप्रूव्ड माय सेल्फ एंड आई कुड डू बेटर, ताकि मैं गेस्ट को अच्छा करके प्रेजेंट करूं। ये होती है आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट के लिए, बच्चों की आगे वाली असेसमेंट के लिए उनको पढ़ाते हैं हम, ताकि जो आप क्लासेस में क्विज लेते हैं, अलग अलग कोई टेस्ट ले लिया, पूछ लिया, हर जगह पर बच्चों को लेबल मत करिए। क्लासरूम के जो क्लास के टेस्ट होते हैं उसमें बच्चों को ग्रेड मत दीजिए। जो आप यूजली सरप्राइज टेस्ट ले लिया, वो ले लिया, आप ही के लिए सरप्राइज हो जाता है जब बच्चा कुछ नहीं लिखता। बच्चे के लिए कुछ नहीं होता है, राइट। अगर बच्चे ने कुछ लिखा है, यू हैव टू गिव द फीडबैक कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। फीडबैक दीजिए, बच्चा इंप्रूव करेगा। आप बच्चे को तैयार कर रहे हो, हर वक्त बच्चे के टेस्ट के लिए तो मत रेडी हो। दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब आ गया असेसमेंट एज लर्निंग। अब अगर मैंने सब्जी खाना सब बनाया और उसके बाद में क्या हुआ कि मम्मी को मैंने चेक नहीं कराया, राइट, बट मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये लिखा है, जो भी चेक किया, मम्मी ने बेची बनाई हुई है कि इसकी जो थिकनेस है वो ऐसी होनी चाहिए कि चाशनी ऐसे बनाओ कि वो इस तरीके से तार की फॉर्म में गिरे, टूटे नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे करके देख रही हूँ, दैट इज अ रूब्रिक्स। मैं चेक कर रही हूँ कि वो टूट रही है कि नहीं टूट रही, वो थिक है कि नहीं है, राइट। उसमें वो करो तो चिप ऐसे फिंगर से ऐसे करके देखते हैं ना, कि बन रही है कि नहीं बन रही है तार जिसने बनाई है, राइट। तो वो क्या है, मेरे पास मैं खुद चेक कर रही हूँ, मेरे पास कोई और पर्सन नहीं है। That is called assessment as learning. वो रूब्रिक्स है, हमने बच्चों के पैरामीटर्स दे रखा है। अगर बच्चे सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ये हमारा है असेसमेंट एज लर्निंग, जिसके लिए हम पोर्टफोलियो एक्टिविटी करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज में ही बेस्ट एक्टिविटीज निकालते हैं, देन दे गो अहेड विद द पोर्टफोलियो। यस, या शबरी ने बेर चखे पहले, जो बेर तैयार थे, मीठे थे, वही बेर दूसरी नाम को दिए। क्या किया उन्होंने? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तैयार हुए भेजे कि जाओ, अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं आएगी, ये सब रेडी है, इसमें कोई कड़वा नहीं है, इसमें कोई तीखा नहीं है। क्या हम बच्चों को असेसमेंट फॉर लर्निंग तैयार करते हैं कि वो एग्जाम में जाकर तैयार हो जाए? वो हमें तैयारी करानी है। वो तैयारी के लिए कोई नंबर की, कोई ग्रेड की, कोई पनिशमेंट की, कोई लेबलिंग की जरूरत नहीं है। उसमें चाहिए फीडबैक, फीडबैक दैट लीड्स देम टू फीड फॉरवर्ड। फीडबैक अगर हमने दे दिया, मैंने वैसे बोल दूं कि मैडम ये आपका ये ठीक नहीं लग रहा है, आप सही से नहीं बैठे हैं, सपोज मैं ऐसे बोल दूं, ठीक है। अब ये तो मैंने, उनको क्या पता सही बैठना कैसे है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, बता तो दूं कि मेरी क्या इच्छा है, क्या पैरामीटर है, राइट। तो अगर मैं बच्चे को, बच्चे तुमने ठीक नहीं किया है काम, तो ठीक करना कैसे वो कौन बताएगा? वो भी बताना पड़ेगा, ये आंसर गलत है, रॉन्ग है। चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Let's all learn something from this Shabri and Ram Samvad. Can we learn it? Can we prepare our students for it? Can we give such kind of feedback to our students that will help them to go ahead, feed forward? इसका कॉन्सेप्ट आपको मैम ने बताया, मैंने भी आपको बताया, Bloom's taxonomy, वाह। आप मुझे ये बताइए, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो कौरव, पांडव, ये सारे शिक्षा लेने कहाँ गए थे? किस गुरु के पास? द्रोण के पास गए थे, ठीक है। अब वो जो मछली की आंख थी वो किसको दिखाई दे रही थी? अर्जुन को तीर चलाना आता था, उसको इतना
फोकस था इतना, उसका कंसंट्रेशन कम, उसको मछली की सिर्फ आंख ही दिख रही थी, राइट? तो क्या जो भीम था, युधिष्ठिर था, या बाकी और नकुल सहदेव थे, क्या वो एलिजिबल है? दुर्योधन भी हो, वो एलिजिबल नहीं थे वॉर के लिए, क्षत्रिय थे तो वो वॉर के लिए एलिजिबल नहीं थे, थे ना? दे वर गुड एट देयर ओन फील्ड। नहीं, उनको तीर नहीं चलाना आता था, उनको गदा चलानी आती थी। किसी को नेजा भाला चलाना आता है, जिसका इंटरेस्ट था उसको चांस उन्होंने बोला कि जो तीर नहीं चला सकता सारे जाओ, सब बेकार नहीं। एक ही पैरामीटर तो नहीं रखा ना। He was preparing all of them for the, क्योंकि क्षत्रिय है तो उनको युद्ध विद्या आनी चाहिए, यही है ना, वो यही सीखने के लिए गए थे। अब युद्ध विद्या जरूरी है कि तीर से चलाकर करी जाएगी, हाँ? वो तलवार से नहीं लड़ सकते या वो गदा से नहीं लड़ सकते, ऐसा तो नहीं है ना। उन्होंने हर एक के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली उनको शिक्षा दी, गुरु द्रोण के टाइम। फिर हम कहते हैं कहाँ गए वो गुरु द्रोण जैसे गुरु, और वैसे शिष्य कहाँ हैं जो ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं? करते हैं? नहीं करते। हमने तो वो क्या खोल रखा है, वन साइज फिट्स ऑल। लेकिन वो गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी। सी, अगर हम करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव उनका है, दे विल बी गोइंग अहेड लाइक इन द लाइफ, अपना विजन अचीव करेंगे, तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं। दे कैन बी गुड आर्टिस्ट, पेंटर्स, ये वो पोएट्स। हर एक डॉक्टर इंजीनियर ही बनना होता है क्या? जरूरी तो नहीं है ना। तो लाइकवाइज प्लीज लेट अस फोकस ऑन दिस कि उनके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उनको फ्रीडम दिया जाए एक्सप्रेशन का, राइट? तो मुझे नहीं लगता ये मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने या वाक की जो थ्योरी दी है, मैं तो वहीं से एग्जांपल लेती हूँ महाभारत से, कि वो तो तब के चले आ रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो वो शबरी ने मेरे को सिखाई, ठीक है? तो लेट अस एक्सप्लेन, आप ही पढ़ो। My dear teachers, you all are autonomous in choosing the pedagogy. कोई आपके नहीं चूज कर रहा कि आपको पोइट्री से पढ़ाना है, आपको आर्ट कराना है, क्राफ्ट कराना है। You are the ones who will be choosing the pedagogy for your class as per your students' learning styles. Assessment tools. अपने बच्चों से पूछिए बेटा आपको किस तरीके से, अगर एक जनरल क्वेश्चन है, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी यू कैन डू, कि आपको किस तरीके का टेस्ट करना अच्छा लगता है, आपको क्विज अच्छा लगता है, आपको पेपर लिखना अच्छा लगता है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। आपकी क्लास में the children they will be coming up with innovative ideas. They will always say open book test. तो नहीं fine, open book test भी आप उनको देके देख लो, when give them higher order thinking skill questions, they will not be able to, I mean obviously give them, एक बार करा के भी देख लो, ये वाला भी उनको ये क्लियर भी हो जाए कि ओपन बुक टेस्ट करते कैसे हैं। उनके कॉन्सेप्ट में तो ये है कि शादी से वैसे आंसर मिल जाता है, उनको ये भी करा लो एक बारी, तो they will be going ahead and motivating the participants. You need to motivate. बहुत सारे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ, आप में से भी बहुत सारे आगे नहीं आ रहे हैं कई बार आंसर के लिए, ये नहीं कि आता नहीं है, but sometimes you don't want to come forward. Next point, initiative. उनको बोलो इनिशिएटिव लेना सीखें, राइट? उनको बताओ and scaffold them. स्कैफोल्डिंग की एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप जब जाओ ना, आपको ये सब चीजें को लिटरेचर जो हम बोल के जाएंगे सब भूल जाएंगे आप, एग्जांपल्स नहीं भूलोगे कभी, नहीं भूलोगे, शबरी नहीं भूलोगे कभी, गुरु द्रोण नहीं भूलोगे आप, ठीक है? और क्या नहीं भूलोगे? एक चीज और बताती हूँ, सिंड्रेला नहीं भूलोगे, नाइस, हॉट सीट। अच्छा चलिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, छोटा सा बच्चा होता है घर में, चलना सिखाना होता है, उसको वॉकर में बिठाते हैं, कितने व्हील होते हैं? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है? वो जितनी जगह उतनी लगाए ना, 10 तो नहीं लगा सकते ना, वो चलो मूव कर रहा है बच्चा, थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो गया, ट्राइसिकल के देते हैं 3 पहियों वाली, और बच्चा बड़ा हो गया क्या करते हैं? 2 पहियों वाली साइकिल, और उसके साइड में भी सपोर्टर्स लगे होते हैं, ऐसे नहीं बिठा देते हैं उसको। फिर जब बच्चा साइकिल चलाता है धीरे धीरे एक सपोर्टर उतार देते, एक फिर भी लगा रहता है, मेरा तो लगा हुआ था जब मेरे को याद है, ठीक है? कि कभी नहीं बैलेंस करने में दिक्कत है तो इधर कर ले, और फिर जब एक और सपोर्टर उतार देते हैं, वो वाला भी पहले मम्मी पापा जो भी है थोड़ा पकड़ के चलते हैं जब तक बच्चा बैलेंस ना कर ले, जब बच्चा लाइन पे आ गया तो फिर सारी जिंदगी के हाथ पकड़ के चलाते रहते हैं। नहीं, ये है परफेक्ट एग्जांपल स्कैफोल्डिंग का। आपकी क्लास में बच्चे आते हैं, शुरू में उनको आप सपोर्ट करिए, उसके बाद कोई बच्चा है वो फटाफट अपने बाइसिकल पे चलना शुरू हो गया, एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन
दे रिक्वायर मोर सपोर्ट। उनको थोड़ी देर के लिए ट्राइसिकल में बिठाइए। बाइसिकल में जो बच्चा बैठा है, जरूरी नहीं कि दोनों सपोर्टर आप उसके उतार दो, थोड़े से बच्चों को और सपोर्ट करो। इसलिए हम यहाँ पर इस लैंग्वेज में वी डोंट यूज द वर्ड हेल्प, वी से सपोर्ट। द समर्थ स्कूल की अगर हम बात करें तो दिलशाद गार्डन के अंदर यहाँ पर वर्कशॉप लगाई गई है। सीबीएसई से डॉक्टर मीनाक्षी नरूला मैम आए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से टीचिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ाना है। हमारे बीच में स्कूल अदर स्कूल से जो टीचर आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजीव रॉय है। मैं अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल वीआर फेज 1 से हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की ये वर्कशॉप एक्चुअली आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में है। आर्ट इंटीग्रेशन इन द सेंस कैसे आर्ट को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एनसीएफ में या एनईपी में जो बोला है कि आर्ट इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ऑल द लर्निंग्स फ्रॉम नर्सरी टू 12th। तो ये कैसे प्रोसीजर, कैसे ये कैसे करना है, इसको इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका हमारा रोड मैप दे दिया एक्चुअली इसे एक्सपर्ट ने कि सारे टीचर्स को भी क्लियर है कि इस आर्ट इंटीग्रेशन कैसे करें और उसका आउटकम क्या है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस समर्थ स्कूल कि उन्होंने ऐसे वर्कशॉप अरेंज किया एंड दिस इज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज एजुकेटर। मीनाक्षी मैम के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से समझाया, डीप करा है? Meenakshi ma'am is very, I mean, extrovert person. His communication skill is brilliant. वो इतनी अच्छे कम्युनिकेट करते हैं कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हालांकि वहाँ पर जो टर्म यूज कर रही है, जो समझा रहे हैं, वो कभी कभी मोनोटोनस हो सकते हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है और उनका जो बाइलिंगुअल मल्टीपल लैंग्वेज यूज है एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न, दैट इज एक्सीलेंट। और इट इज नॉट ओनली कि वो एक ही तरफ से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भी इंक्लूड कर, उनको भी उसमें इट्स अ डायलॉग एक्चुअली, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। मैम का कहना है कि फीडबैक देना शुरू करें, ना कि ग्रेड देना। एब्सोल्युटली, मतलब जो चीज वो यहाँ बता रहे हैं कि सारे चीज का एक लर्निंग आउटकम होना, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एजुकेशन कोलैबोरेटिव होना चाहिए, टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट है वो भी कोलैबोरेटिव करे। लर्निंग इट्स ए टीचर स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। इट इज नॉट कि टीचर विल कम एंड टीच, शी इज डूइंग द सेम थिंग व्हेन शी इज टेकिंग दिस वर्कशॉप। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वर्कशॉप बिल्कुल ओके। Absolutely, we are very privileged that CBSE has given us opportunity to meet same kind of people and guided by a very बट स्कूल की टीचर हमारे साथ में है, इन्होंने भी वर्कशॉप अटेंड कर रही है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की ये लर्निंग कॉन्सेप्ट जो मैम ने समझाया? मेरा नाम प्रमोदनी मैसी है और मैं यहाँ की टीचर होने के साथ साथ यहाँ की मैं सीनियर कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो ये प्रोग्राम जो आज हमारे यहाँ पे जो वर्कशॉप चल रहा है, जो कि सीबीएसई की तरफ से रन किया गया है, इसके द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि ऐसा होता था कि हम अपने क्लासरूम्स में जब जाते हैं तो हमें मेथड नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से पढ़ाएं, लेकिन आज की वर्कशॉप के द्वारा जो हमारी प्रिया मैम ने और दूसरी मैम ने कंडक्ट करी है, तो उसके द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई कि हमें किस तरह से क्लास में बच्चों को ज्यादा अलर्ट बनाना है, अटेंटिव बनाना है, और हम किस तरीके से उनकी लर्निंग जो स्टेज है इसको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके किस तरीके से हम उनको अधिक से अधिक फोकस कर सकते हैं, जिससे हम उनको बेटर रिजल्ट के लिए तैयार कर पाए। कहा जाए कि इसमें वीक स्टूडेंट भी नंबर 1 आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। जिस तरीके से हम आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम ये जो बच्चे जो है वीक बच्चे हैं उनको भी हम जो है आगे ला सकते हैं। तरह तरह के मेथड जो उन्होंने बताए हैं उनको जो अप्लाई करेंगे अपने दिन प्रतिदिन की कक्षाओं में, तो जरूर ये हो सकेगा कि हम अपने वीक बच्चों को भी आगे ला सकें। जिस तरीके से शबरी के बेर के बारे में उन्होंने बताया, गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में बताया, बहुत ही अच्छे उदाहरण उन्होंने हमको दिए हैं जिनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये जो उदाहरण है, ये इतिहास के जो उदाहरण है, हम अपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और समझते चले आ रहे हैं। तो उसके द्वारा हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इस कॉन्सेप्ट को जो है और क्लैरिटी के साथ आज समझ सके, और उस व्याख्या को समझने के बाद हम अब जब उस चीजों को अपने क्लास में अप्लाई करेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि हम अपनी क्लास में बेहतरीन चेंज लाएंगे। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल मयूर विहार से हूँ।
मैम आज की वर्कशॉप के बारे में क्या है? आज की वर्कशॉप बहुत ही बढ़िया थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इसका थीम था और मीनाक्षी नरूला मैम और प्रियंका मैम ने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई थिंक वो हमें पूरी लाइफ याद रहेंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने हमारे पुराने समय से, जैसे द्रोणाचार्य और जो बड़े कॉमन होते हैं, जैसे सिंड्रेला की स्टोरी के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया, और बिल्कुल छोटे बच्चों के लेवल से स्टार्ट करते हुए और बड़े बच्चों तक को कैसे पढ़ाया जा सकता है बहुत इफेक्टिवली आर्ट को यूज करके। कोई भी आर्ट के डांस फॉर्म हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई, आर्ट हो गया, म्यूजिक, डांस, व्हाटएवर, और ऐसे ऐसे हमें चीजें बताई हैं जो एक्चुअली हमारे आसपास वातावरण में ही होती है, लेकिन हम उसको कभी यूज करने का एज अ टीचर भी सोचते नहीं है। उन्होंने मुगल के बारे में बताया कि क्या खाते थे, हाँ, क्या खाते थे। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ हमारा कभी ध्यान जाता नहीं है कि उसको भी हम टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन अब शायद उसी नजरिए से हम देख पाएंगे बाकी चीजों को कि हम इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ाने में। वहीं अगर हम बात करें, उन्होंने एक टॉपिक भी दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मेरी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए थी कि क्योंकि हमने भी अपने स्कूल में भी स्टार्ट करवाना है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी मैम से, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की कि जैसे दिल्ली की जो पार्टनर स्टेट है वो है अंडमान और निकोबार, इस साल जो चेंज हुआ है, तो उसके बारे में हम बच्चों को छोटे से लेके बड़े बच्चों तक को क्या क्या सिखा सकते हैं। उस स्टेट का कल्चर सिखा सकते हैं, वहाँ की फूड हैबिट्स, क्लाइमेट, वेदर, और जैसे कपड़े पहनने का तरीका हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो कितने तरह के दृष्टिकोण हैं जिस तरह से हम उनके बारे में प्रोजेक्ट्स बच्चों से करवा सकते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ अपने दिल्ली की स्टेट को ही नहीं जाने, अपने पार्टनर स्टेट के बारे में भी बहुत अच्छा से ज्ञान प्राप्त। तो कहा जाए ये वर्कशॉप इट इज एक्सीलेंट, मतलब पूरा हमारा जो दिन का यहाँ पे बैठना था वो बिल्कुल 100% वसूल। साथ में है इलकॉनिक पब्लिक स्कूल जो मयूर विहार के अंदर है, उसके म्यूजिक टीचर। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस वर्कशॉप पे? आज के वर्कशॉप में एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि जैसे कि हम बहुत सालों से हम ये चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आजकल ये जो ट्रेंड में आजकल ज्यादा आ गया है कि आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट एजुकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट इंटीग्रेशन और आर्ट एजुकेशन? यस, ये जो चीजें हो गई हमें हम करते थे, लेकिन इस तरह के वर्कशॉप के थ्रू ये पता लगा यार जो 12 साल 15 साल पहले हम कर रहे थे, आई वॉज ऑन राइट ट्रैक, और क्लियरिटी आ गई उन सब चीजों में। तो ये इससे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी तक पढ़ा रहे थे, आज पढ़ने को मिला, बहुत अच्छी बात। ये तो जिंदगी बचे कि एक टीचर क्या, हर आम इंसान क्या होता है जिंदगी में, सिर्फ हर दिन एक स्टूडेंट है। अगर आप लर्नर है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं मार सकते, और जिसने समझ लिया अहम ब्रह्मास्मि वो खत्म है। तो हम हर दिन एक नए स्टूडेंट की तरह से बिहेव करते हैं, और हमेशा क्लास में पढ़ाते, इवन हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें। सर अगर इस वर्कशॉप की बात करें तो इस वर्कशॉप के माध्यम से हम वीक स्टूडेंट को आगे ला सकते हैं। बिल्कुल लेके आ सकते हैं, और मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीक थे, जिनके पेरेंट्स ने या स्कूल ने कहा भाई ये बच्चा क्या करेगा। इवन आई वाज थिंकिंग दैट आफ्टर 12th व्हाट वी विल डू, लेकिन मेरे म्यूजिक सब्जेक्ट में जब मैंने उसको इनहांस किया, आज उनका अपना कैरियर है, दे आर परफॉर्मिंग वेल इन द सोसाइटी, उनकी अपनी इज्जत है, और उनका एक कह लीजिए कि सोर्स ऑफ इनकम का माध्यम है। वो बता सकते हैं व्हाट आई एम टुडे, दिस इज द कॉन्फिडेंस। मीनाक्षी मैम ने जिस तरीके से मुगलों के बारे में बताया जी, कि किस तरीके से वो डांस है, तो तानसेन के बारे में बताया। जी हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर आपको आर्ट इंटीग्रेशन करना है, बताना है, तो अगर अगर किसी भी बादशाह के बारे में बताना है, तो मुगल कल्चर में जो है संगीत का भी बहुत अच्छा मत, जैसे अकबर के दरबार में हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर आपको अकबर के बारे में बताना है तो आपने नवरत्न को भी बता दिया, नवरत्न की भी टीचिंग हो गई, सोशल स्टडीज भी हो गई, और उसमें क्या हुआ कि वो पढ़ाते क्या थे, वो गाते क्या थे, वो करते क्या थे, तो वो बता दिया। फिर उस एरा में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता था आपने वो भी बता दिया। तो एक पर्सन को बता करके आपने बहुत सारी चीज, आर्ट इंटीग्रेशन, दैट इज द एक्चुअल मिला के बोरिंग सब्जेक्ट को एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली, एक आम सी खिचड़ी को बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको तड़का लगा के दे दिया, और आप 5000 रुपए में उसको बेच। सीबीएसई से रिसोर्स पर्सन हमारे बीच में है, मैम इनसे बात कर लेते हैं। मैम ने आज काउंसलिंग दी है टीचर्स को समर पब्लिक स्कूल और विभिन्न स्कूल के यहाँ पर टीचर यहाँ मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आज की वर्कशॉप? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रिया गंभीर है। आज की वर्कशॉप आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में थी। जब से NEP 2020 आई है, हम लोग आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट सही तरीका क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, कैसे टीचर्स और लर्नर्स इससे बेनिफिट कर सकते हैं, आज का टॉपिक उस पे बेस्ड था। 50 पार्टिसिपेंट्स आए हैं हमारे पास और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है, एनकरेज्ड है, एंड डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, डिफरेंट डिज़ाइंस, कैसे स्कूल का रोल है, क्या टीचर का रोल है, लर्नर क्या करेगा,
ये सब बातों पर हमने इलेबोरेटली टॉक किया है। नॉट ओनली दैट, हमने डिफरेंट एक्टिविटीज और एग्जाम्पलर्स के माध्यम से ये भी बताया है कि कैसे डिफरेंट स्कूल्स ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, बट अब टाइम आ गया है कि इसको बहुत अच्छे से प्लान करें। तो उस प्लानिंग में हमने किस तरह से इस चीजों को इंटीग्रेट करना है, आज हमने ये इलेबोरेटली डिस्कस करके अपने टीचर्स को बताया है। काफी इंटरेस्टिंग ये वर्कशॉप रही, टीचर्स ने बहुत कुछ सीखा है। यस, टीचर से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि सीखने के लिए आपको खुद एक क्वेस्ट होनी चाहिए, एंड हमारे यहाँ पर टीचर्स आर फुल ऑफ दैट क्वेस्ट। एक हंगर है, एक क्वेस्ट है उनमें सीखने की। मोर ओवर, आज का टॉपिक जो था वो आपके आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, आप उसको कैसे अपनी रेगुलर टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करेंगे, उसके बारे में था। तो हमने एग्जाम्पल्स ना सिर्फ बुक से लिए हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में मैंने बताया है टीचर्स को। हमने ये जो अभी चंद्रयान 3 हुआ गया है, इसके बारे में बताया है। हमने बताया है कि राम और शबरी की कहानी कैसे हमें आर्ट इंटीग्रेशन सिखाता है, कैसे द्रोणाचार्य ने पांडवों को जो शिक्षा दी, उसमें उन्होंने कैसे असेसमेंट टेक्निक यूज की, और वही टेक्निक तो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। मुगल के बारे में भी यस, मुगल के बारे में बताया, और नॉट ओनली मुगल के बारे में बताया, एक मुगल डायनेस्टी से 4 या 5 सब्जेक्ट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत माइन्यूटली हमने टीचर्स को एग्जाम्पल्स के साथ इलेबोरेट करके समझाया है कि आर्ट इंटीग्रेशन एक अलग टॉपिक नहीं है। आर्ट इंटीग्रेशन अब आपकी रोज टीचिंग का पार्ट है। आप उसको कैसे डिजाइन करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी पहले की प्लानिंग में, और फिर आता है उसका एग्जीक्यूशन। मैम, टीचर्स का ये भी कहना है कि इस आपके लर्निंग कॉन्सेप्ट से वीक स्टूडेंट भी आगे आ सकते हैं। यस, क्यों नहीं। वीक स्टूडेंट्स जनरली डर जाते हैं, क्योंकि हम उनसे सिर्फ बुक्स के सवाल पूछते हैं। आप उनसे पूछिए कि बाहर के समाज से उन्होंने क्या सीखा। आप उनको इंक्लूड करेंगे तो वो कंफर्टेबली आपसे बात कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है, शायद बच्चे मूवी देख के सीख जाएं, चाहे बच्चे उस सॉन्ग से सीख जाएं, चाहे बच्चे आसपास होने वाली गतिविधियों से सीख जाएं। आप ये भी सोचिए कि उनका सुबह उठकर स्कूल आने तक का जो सफर है, वहां पर भी उनकी लर्निंग हो रही है। और उनसे अगर आप इन चीजों के बारे में बात करेंगे, वो बच्चे आपको कंफर्टेबल भी होंगे, आपके साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे, और अपने आप को इंक्लूडेड मानेंगे उस क्लासरूम में। मैम, अगर हम बात करें आने वाला सफर का, तो सफर जो है वो एआई का होने वाला है, तो एआई का एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास जो रोबोट्स हैं वो मास्टर्स नहीं हो सकते, राइट? मास्टर्स हम ही रहेंगे। डिपेंड करता है हाउ स्मार्टली वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अगर आप एआई की बात करते हैं, आज भी इंडिया में इंडस इंटरनेशनल स्कूल 21 रोबोट्स के साथ वर्क कर रहा है, राइट? अब यहाँ पर रोबोट्स तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन टीचर एज अ फैसिलिटेटर भी खड़ा है। टीचर्स बच्चों को समझा रहा है कि रोबोट क्या इंफॉर्मेशन देगा। सो यहाँ पर एआई, रोबोटिक्स और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको फिल्टर करके उसका जुडिशियस यूज जो है वो टीचर ही सिखाएगा। हमारे साथ में टीचर हैं भारत नेशनल पब्लिक स्कूल की, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज की इस वर्कशॉप के बारे में? So basically, this workshop was about capacity building in art integration. So it was for me a transformative journey of learning how seamlessly we can blend art into the curriculum. अगर मैं इसको layman terms में बोलूँ, पढ़ाई करने के और भी क्रिएटिव तरीके क्या हो सकते हैं, we got to learn from this particular workshop. We got to learn different art forms, different strategies, different innovative strategies, जिससे पढ़ाई को हम कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए। मैम, अगर हम बात करें बच्चों को, अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आर्ट के माध्यम से सिखाना है। ओके, सो बेसिकली पुराने जमाने में, मैं बोलूँ जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो टीचर्स के पास सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती थी, रीड करवाना और क्वेश्चन आंसर दे देना और रोट लर्निंग जिसे हम बोलते हैं। आज की डेट में जो कन्वेंशनल मेथड से हम उनसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एंड इस वर्कशॉप के थ्रू भी हम यही समझ पाए कि कोई चैप्टर पढ़ाना भी है तो उसको थिएटर के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ म्यूजिकल एलिमेंट्स ऐड करके भी पढ़ा सकते हैं। और वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हम लोग रोट लर्निंग मतलब रेक्टिफिकेशन के अलावा भी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक कर पाना, और उसके बाद बच्चा उस अंडरस्टैंडिंग से कहाँ पर उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर पा रहा है वो समझ पाना, और उस अंडरस्टैंडिंग के
बेसिस पर बच्चा नई चीज क्या क्रिएट कर पा रहा है, वो हम लोग फोकस करना चाह मैम रहे हैं। देखने में आ रहा है कि 2 साल जो कोरोना काल का रहा, उसके बाद में जो बच्चा नेक्स्ट क्लास में गया उसका बेस देखिए वो ऐसी कोरोना की वजह से एक ऐसी प्रॉब्लम जरूर आई है, बट मैं ये भी बोलूंगी कोरोना फॉर अस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल ब्लेंडेड लर्निंग जैसा एक बहुत अच्छी, आई वुड से, मीडियम स्कूल्स तक पहुंच पाया। बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी हो पाई स्कूल्स में। सो हाँ, कोरोना के कुछ नुकसान थे, बट यस, एज वी ऑलवेज नो, एज वी ऑलवेज से दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। प्रॉब्लम्स भी हुई, बट मुझे लगता है बहुत सारी लर्निंग भी हुई उसकी वजह से। तो जो बच्चे, अब जो टाइम चल रहा है जिसमें कोरोना को हम ओवरकम कर चुके हैं, इसमें अब बच्चा बहुत कुछ सीखने वाला है। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू फॉर द इन द कमिंग ईयर। हमारे साथ में हिंदी टीचर समर्थ स्कूल की हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम कैसा रहा ये वर्कशॉप? आज का जो वर्कशॉप था आर्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड था, जिसको कहते हैं कला समेकित शिक्षा। जिसमें क्या है कि कई बार क्या है, बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते, एक ही मेथड को एक ही मेथड को, एक विषय को भी। कई बार अगर उस विषय को अगर हमें रुचिकर बनाना है तो उसके लिए हमें और विषयों को भी उसमें जोड़ना पड़ता है। जैसे चाहे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में अगर हम मैथ भी जोड़ें, संस्कृत भी जोड़ें, इवन इंग्लिश भी जोड़ें, तो वो और भी ज्यादा रुचिकर बन जाता है। जैसे हमारे देश में ही है, बहुत सारे स्टेट हैं, अगर वो स्टेट ना हो तो देश किस बात का। वैसे ही अगर शिक्षा में पूरे विषय ना हो और वो इंटरेस्टिंग ना हो तो वो विषय शिक्षा नहीं रह जाएगी। मैम आज अगर हम बच्चों की हैंडराइटिंग की बात करें, क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं, मोबाइल ने कहीं ना कहीं हिंदी हैंडराइटिंग को बिल्कुल ठीक बात है, हिंदी को और इंग्लिश को सभी को वो तहस नहस किया। लेकिन मोबाइल का एक अगर दूसरा रूप देखें तो पॉजिटिव भी देखें, कोरोना काल में हमें उसी ने बचाया है सबसे ज्यादा। बिल्कुल बचाया है, लेकिन अगर हम हैंडराइटिंग बेस की बात करें और लर्निंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो भी हमें रुचिकर बनानी होगी। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे हिंदी भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट डिक्टेट कर रहे हैं तो बच्चा बोर होगा। अगर उसी को हम कंप्यूटर, वही हेल्प ली हमने उसकी या और विषयों की हेल्प ली, तो हम उसको भी रुचिकर बना करके हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। तो आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी, और जिसे कहते हैं ना कि संतोषजनक से भी ज्यादा सभी ने शिक्षा प्राप्त की। अभी ये हमारा वो था लर्निंग टाइम। अभी तक तो आप पढ़ाते थे, आज पढ़ने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि शायद वो बचपन हमारा फिर से लौट आया। हमारे भी वही क्वेश्चन शुरू हो गए कि भाई गुरु द्रोण ने ये शिक्षा सभी को नहीं दी, लेकिन हाँ शायद हम भी गुरु द्रोण बनने की कोशिश करें कि हर बच्चे की एक शिक्षा स्तर के हिसाब से उनको शिक्षा ग्रहण करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग। आज हमने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेजरफुल था वर्कशॉप। एंड आप सोचिए इतने लर्नेड लोग हमें आए हैं मेंटोरिंग करने के लिए, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। ऑल्दो हम सभी फैसिलिटेटर्स हैं जो कि क्लासरूम में बच्चों को टीच करते हैं, उनके फ्यूचर को ग्रूम करते हैं, पर हमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की या ऐसे कुछ कहेंगे फीडबैक्स की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, कि हम अपने आप को भी वो पॉलिश मैनर में ला सके। तो वर्कशॉप टीचर्स के लिए इसी रीजन से रखी जाती है। एंड जैसे कि आज का टॉपिक है आर्ट इंटीग्रेशन, दैट माइट बी, मतलब दैट इज द फेवरेट फॉर एवरीवन, मतलब सभी को पसंद है। बच्चे आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स आर्ट देन टू जस्ट कोई चीज को रीड आउट करना, या सिर्फ उसको बस पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लेना, वेरियस फॉर्म्स में दे सकते हैं। तो आज मैम ने हमें बताया, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी नरूला मैम है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि हम बच्चों से ही फीडबैक लेके कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रेड ना दे करके हम फीडबैक, डेफिनेटली, लेकिन जैसे मैम ने बताया कि अगर हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली सेग्रीगेटिंग देम, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्लासरूम में एक यूनिफॉर्मिटी में, एक यूनिकनेस में आते हैं कि सब एक है। when they are sitting inside a room, तो वो हम सभी सब इक्वल है। तो मैम ने ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जिसमें कि हम ग्रेडिंग ना डलाकर हम उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, जैसे हम उनको केटर कर सके कि हाँ इनका ये फेवरेट है। कोई बच्चा है जो आर्ट में ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा जो है वो अच्छा कोल से आर्ट कर सकता है, कोई बच्चा है जो ड्रेस डिजाइनिंग कर सकता है। तो व्हाई नॉट हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स को एक टुगेदर एक प्लेटफॉर्म में लाएं, एंड दैट इज आर्ट इंडिया। मैम इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि प्रेशर टीचर पे नहीं आएगा, क्योंकि 40 बच्चे हैं, सबका आईक्यू अलग है। सी, ये आप जरूर बोल रहे हैं कि 40 बच्चे, बट दैट इज द चैलेंज, दैट इज फॉर द टीचर्स देयर इन द क्लासरूम। और आई डोंट थिंक कि ये हमें भी बोर नहीं होने देगा। क्लासरूम में जैसे एक रॉट लर्निंग वाली स्ट्रैटेजीज थी
ये हमें भी बोर होने नहीं देगा, एंटरटेन करेगा एवरी टाइम। यू विल बी रेडी कि आपका बच्चा नेक्स्ट चैलेंज आपको क्या देने वाला है, एंड दैट इज दी स्टोरी। मतलब वही मॉरल ऑफ द स्टोरी है व्हेन यू आर एंटरिंग टू द क्लासरूम। आज का बच्चा आप जानते हैं कि इज द 21st सेंचुरी लर्नर। तो कहा जाए कि अब 10 समर्थ का जो स्टैंडर्ड होगा पढ़ाने का वो आज से और बदल जाएगा। डेफिनेटली हमने 21st सेंचुरी लर्नर्स को केटर करना सीखना शुरू कर दिया है, एंड probably in the upcoming years आप बिल्कुल ही modified way form देखेंगे स्कूल का। So we are on that track और I'm very happy कि आज हमारी ये शुरुआत जो हुई है, भगवान करे ये शुरुआत कंटिन्यू ऐसी चलती रहे सारे साल, कि हम और से कहते हैं ना बेटर से और बेटर। हमारे साथ में डॉक्टर मीनाक्षी नरूला मैम है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से टीच कर रही थी टीचर को। मैम बहुत ही सुंदर तरीके से आपने टीचर्स को समझाया है, क्या कहना चाहेंगे इस परिवर्तन के लिए? जी, एक्चुअली द थिंग इज आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कला के माध्यम से हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, किस तरीके से हम अपनी कक्षा में वो जॉय लेकर आए, वो आनंद लेकर आए कि बच्चे बस घर पे उनके कदम रुक ही ना सके। जो कहते हैं ना कि बच्चे स्कूल में जो है वो खुश होके नहीं आते हैं, वो इस तरीके से खुश होके आए कि उनका जाने का मन ही नहीं करे। एक दिन अध्यापक छुट्टी पे हो तो बस उनको लगे कि आज तो कुछ ऐसी चीज हो गई है कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ चीज मिस हो गई है। तो उस तरीके से एक बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए एक हमारा जो इनिशिएटिव है, एक प्रयास है कि किस तरीके से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके कला के माध्यम से, कि हर जगह पर वो विजुअलाइज करें क्या वो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इतना सुंदर तरीके से आपने एग्जांपल दिए कि एंटरटेन हुए टीचर। ये एक्चुअली मेरे को ये होता है कि जरूरी नहीं कि हम अपनी पश्चिम सभ्यता को ही देखकर बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम अपने वेद, अपने ग्रंथ देखें, उनको खोलकर देखें, कितने अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया गया। हमारे अगर हम बात करते हैं गुरु द्रोण की, उन्होंने क्या अलग अलग तरीके से जब शिक्षा दी, युद्ध विद्या देते थे क्षत्रियों को, युद्ध के लिए तैयार करते थे। ये तो नहीं कि हर कोई तीर चलाना सीखे तभी वो पढ़े। तो हम अगर आज की दुनिया में, आज के युग में हम बोलते हैं कि गुरु द्रोण जैसे अध्यापक नहीं है या अर्जुन जैसे शिष्य नहीं है, तो क्यों नहीं हम अपनी तरफ से क्यों नहीं कोशिश करते वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल बच्चों के अलग अलग इच्छाओं के तरीके से, अलग अलग उनके जो होता है ना बौद्धिक क्षमताएं कि किस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, उस तरीके से अगर बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो बेहतर करेंगे बच्चे हर एक अपने फील्ड में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो शिक्षा का, तो वो एक इनोवेशन लेकर आएंगे। मैम आपने एक टॉपिक दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा एक इनिशिएटिव है, इसमें हम ये बताते हैं कि जब हम धीरे धीरे समय के साथ अपनी सभ्यता को, अपने हेरिटेज, अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रयास है कि हम अपने बच्चों को पहले अपनी सभ्यता के बारे में बताएं, फिर वो उसके थ्रू जब ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग हम में से ये सोचते हैं कि शायद हम बच्चों को ग्लोबल सिटीजन नहीं बनाना चाहते, 21st सेंचुरी लर्नर नहीं बनाना चाहते, वो भारत में ही रहेंगे क्या, वो अपने सिर्फ अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे? नहीं, जब अपने कल्चर की कदर करना सीखेंगे तभी तो दूसरे की सभ्यता को समझेंगे, उसका आदर मान सत्कार करेंगे और उसको कोलैबोरेट करके देखेंगे कि हमारी सभ्यता में कितना कुछ है पढ़ने के लिए। मैम आने वाला समय AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसका असर एजुकेशन पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, जब हम AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सबसे पहले कि हम नए नए टूल सभ्यता में जैसे जैसे बदलाव आते गए, ठीक है, अगर हम पुराने समय की भी बात कर रहे हैं, आज की भी बात कर रहे हैं, लर्निंग स्टाइल की भी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कलम को उठाकर हमने स्टाइलर पकड़ लिया, राइट। अगर हम किताबों के पहले हम बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया लेकर बैठते थे, गूगल सर्च आ गया, अब हमारे पास अनदर AI टूल हर एक कोई है। अगर हम उसको यूज अच्छे से बच्चे को करना सिखाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मीडिया लिटरेट करना बच्चों को, कि बच्चे मीडिया लिटरेट हों, बच्चों को पता चले कि मीडिया को यूज कैसे करना है, जिसको कहते हैं बी इंटरनेट ऑसम, तो वो हम सिखाएंगे बच्चों को पहले कि किस तरीके से करना है। कि हम सोशल मीडिया से बच्चों को हटा तो नहीं सकते, ये फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, बंद नहीं कर सकते। बच्चों के हाथों से अगर मोबाइल का डिवाइस है छीन नहीं सकते, और उनको बता तो सकते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, राइट, उसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि वो अपने नेशन के लिए सबसे पहले सोचें, बी ए गुड सिटीजनशिप एंड सिटीजन्स बने अच्छे, और फिर दुनिया के लेवल पर बहुत अच्छे भारत को भी आगे लेकर। मैम कहा जाए इस सबके पीछे मकसद एक आत्मनिर्भर बनाना बच्चे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आत्मनिर्भर बच्चे जब बनेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, भारत का एक स्थान होगा एक ग्लोबल में। हम कहते हैं हमारे बच्चे, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, 10th पढ़ते नहीं है, वो बाहर विदेशों में जाकर पढ़ने की बात कर रहे हैं, कि हम विदेशों के बच्चों को यहाँ नहीं लेकर आ सकते?
हमारी सभ्यता इतनी रिच है, क्या ना हम करें कि यहाँ पर बाहर के दूसरे देशों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आए। अब हमारे साथ में है गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड की टीचर, इनसे भी बात कर लेते हैं, वर्कशॉप में शामिल हुई हैं। मैम कैसा लगा? It was wonderful to attend such an interactive session. बहुत कुछ सीखने को मिला आज, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हमें पता चले कि हम क्लास में क्या क्या कर सकते हैं। एक स्टीरियोटाइप लर्निंग को छोड़ करके एक नए आइडियाज जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लास में, एज वेल एज बजाय इस चीज को कंटिन्यूसली अपने दिमाग में स्ट्रेस बना के चलने के लिए कि बच्चों का हमने जो एक नए इनोवेशन जो बच्चों को सिखाने हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। ये सच वर्कशॉप्स रियली अ हेल्प। ये जो पुराने टाइम से जो चलते आ रहे हैं ना, वो मेथड्स को तोड़ रहे हैं और एक नए मेथड्स हमारे लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ये हेल्पफुल सेशंस की होते ही रहने चाहिए। आई थिंक बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, कैसे बनाते हैं ये उन्होंने हमें बताया। और ये सच में कभी कभी हमको ये आइडियाज आते ही नहीं है कि ऐसा भी अरे हम कर सकते हैं, और जब हम सुनते हैं तो लगता है अरे ये भी तो हम कर सकते थे, ये भी हम कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप इस तरह की सेशंस में आते हैं, और जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठते हैं तो उनके भी नए थॉट्स आपको पता चलते हैं। दैट रियली हेल्प्स यू बूस्ट your energy level as well as your knowledge skills. मीनाक्षी मैम की बात करें तो so many ideas दिए एग्जांपल के। Absolutely, I think she is dictionary. वो उनके पास तो शायद भंडार है इन सब चीजों का, और मैं I would definitely follow उनके जो चैनल्स वगैरह हैं। I will definitely subscribe. मुझे उनकी नोटिफिकेशंस चाहिए अब तो चाहिए सही बूस्ट अप हो गए बिल्कुल 100%। मैम कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। इसमें अटेंड करके सेमिनार को पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, बच्चों को किताबी कीड़े के अलावा भी हम कुछ करा सकते हैं ना। जैसे क्ले मॉडलिंग का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अभी तक सिर्फ लगता था कि नर्सरी फर्स्ट में या जस्ट एज वर्क एक्टिविटी हम उनको करा रहे हैं, बट सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे आज उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्ले मॉडलिंग में कुछ भी बनाइए। तो हिंदी में हमने विलोम शब्द बनाए, उसमें इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बन गई। उसमें उन्होंने सुबह भी एक्टिविटी कराई थी जिसमें उन्होंने एक क्लिपिंग दिखाई थी कि इसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग करिए। उसमें हमने बैठे बैठे ना उसमें क्ले मॉडलिंग से सीनरी बना दी। तो रियली वेरी इनोवेटिव एंड बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत बोर तो नहीं हुए? बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। टाइम ही नहीं पता लगा कि कब हम सुबह आए, नहीं तो पहले लग रहा था इतना लंबा सेशन कैसे करेंगे, बट आज तो पता ही नहीं लगा कब टाइम निकल गया। कहा जाए कि हम वीक स्टूडेंट को भी यहाँ उभार सकते हैं इस कला के माध्यम से। उभारने की बात तो अलग है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्रूवमेंट होगी और एक विलक्षण बच्चा बन के निकलेगा। तो बाकी टीचर को स्कूल के अंदर जाकर के बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। Very happy that our school is the venue for this CBP on art integration today, and it gives me an immense pleasure that the accomplishment, it is kind of an accomplishment for our school to mentor educators from our school as well as from the neighboring schools by CBSE representatives or the resource persons, those who are having their expertise, they can share their knowledge. So I would like to say that teachers are not the technicians, they are the 21st century co-learners. And as you saw in the workshop, all are sitting all together. There was no barrier who is sitting at on which chair and what else. So all were sitting as a co-learners over there. There was no assistant teacher, there was no coordinator. All were treating as a co-learners. so many teachers से हमने बात करी तो उन्होंने का ये कहना हम बोर नहीं हुए, एंटरटेन। Exactly, we are sitting here since 9 a.m. and I don't think a single moment we got bored. So it was a really very productive and in a very innovative way. If you can focus on my table, there is a sculpture, which is also a part or an example of this art integration. So वो कहीं ना कहीं teachers को एक concept शायद इतना clear नहीं था कि art integration they are trying to relate it with the art and craft. But it is not like that. It is a multidisciplinary approach where we can integrate all subjects and we can deliver our lectures with the help of art in the form of different form of art. So that was the motive of this workshop. स्कूल्स की अगर हम बात करें तो कितने स्कूलों ने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट? See, neighboring schools, number of schools have participated, but the thing is that because before 24 hours the registration got freezed, so rest of the schools are coming ki ma'am, okay, just give us the opportunity because this is the first time we are initiating. So hopefully इस बार तो 10 schools ही थे, but the number would be increased. मैम आने वाले समय में क्या ऐसी वर्कशॉप्स और लगाई जाएंगी? Definitely, as per the CBSE circulation, if you have heard about it, that every teacher have to complete 50 hours training session
during the academic year of this from April to March. So we have to we go through with the continuous professional development. हमें वो complete कराना ही. Ma'am, what about saying Meenakshi Narula? Meenakshi Narula ma'am is one of my favorite because I'm a follower. She's a YouTuber as well. So she used to deliver number of things through the YouTube channel and number of skills and number of expertise she is having. So what should I say? Because she is the ocean of knowledge, and we are try to working and collab in a collaboration. Hopefully, number of workshops we will go ahead with her.